حاضر ہوں بیسیکلی 2 3 4 چیزیں میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. پچھلے تقریباً 2 سے 3 ہفتے میں 1-2 ایسے واقعات ہوئے کہ جو بہت زیادہ دل آزاری کے سبب بنے. آج سے 3 دن پہلے گجرانوالہ میں ایک نوجوان کو رات کو اٹھایا گیا اور میری اطلاع کے مطابق اس کے ساتھ پولیس بھی شامل تھی اور اس کو رات کو لے جا کے تو اس پہ تشدد کیا گیا. صبح اس کا ایک بیان جاری کروایا گیا اور انتہائی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس کے چند گھنٹے کے بعد ہی وہ جو نوجوان ہے وہ پبلکلی آ کے کہہ رہا ہے کہ جی میرے پہ تشدد ہوا اور میرے سے بیان زبردستی لیا گیا. تو اس سے یہ جو سارا کام ہوا میں سمجھتا ہوں وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. گورنمنٹ آف پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بات کا سخت نوٹس لیا ہے. ادارے وہ بھلے وفاقی ادارے ہوں صوبائی ادارے ہوں ان کو پولیس کی ساتھ رہنمائی ہونا ان کے ساتھ ان کو ملنا وہ ٹھیک ہے ایک قانون کا حصہ ہے مگر پولیس کی جو آپ کو پروٹیکشن ہے یا پولیس کی ہیلپ آپ کو یا کسی کو بھی اس وقت ملے گی جب آپ قانونی کارروائی پوری کریں گے. آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر ہے آپ کے پاس کوئی اریسٹ وارنٹ ہے سرچ وارنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک نوجوان کو ساری رات رکھ کے اس کو ٹارچر کریں اور صبح اس کو چھوڑ دیں. کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اگر اس نوجوان نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ قانونی کام کریں آپ اس پہ ایف آئی آر دیں وہ عدالت میں جائے اپنا نقطہ نظر بیان کرے. مجھے تو یاد ہے کہ جس شخص نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا اس کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اس کو یہ نہیں تھا کہ اس کو ساری رات جوتے مار کے تو صبح چھوڑ دیا گیا تھا. آئندہ سے کسی بھی ضلع میں ایسے ہوا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اور میرے بڑے کلیئر احکامات ہیں. اس ڈی پی او کو اگر قانونی کارروائی پوری نہ ہوئی قانون کے تقاضے پورے نہ ہوئے اس ڈی پی او کو امیڈیٹلی وہاں سے ریموو کیا جائے گا. اس ایس ایچ او کو وہاں سے ریموو کیا جائے گا. ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اس واقعے میں چونکہ یہ دونوں واقعات گجرانوالہ میں ہوئے ہیں میں نے آئی ٹی صاحب کو کہہ دیا ہے سی پی او گجرانوالہ اس بات کی جواب دہی دیں گے کہ ایسے کیوں ہوا. بغیر کسی قانونی جواز کے کسی کو پکڑنا اٹھا کے لے جانا یہ تو بہت زیادتی اور اس کا میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر جو ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہو رہا ہے. الٹا اس سے لوگوں میں بدظنی پھیل رہی ہے اس میں لا لیسنس نظر آ رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ چونکہ پنجاب پولیس ہمارے انڈر ہے تمام آر پی اوز ڈی پی اوز سی پی اوز کنسرنڈ آفیسرز کائنڈلی یہ نوٹ کر لیں. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی انلیگل کام کسی کے ڈسٹرکٹ میں ہوا تو ہم پوچھیں گے بھی نہیں اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ میرا پہلا پوائنٹ. دوسرا کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جی 25 مئی کے واقعات کے جو لوگ تھے ان کو ابھی تک کوئی سزا نہیں ملی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے میں اور جو وفاق میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ادھر چند دن حکومت رہی ان میں کچھ فرق ہے. ایک ڈی آئی جی کے اندر ایک انکوائری شروع ہوئی اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ جو جونیئر رینک کے افسران ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنا دیں. جو ایس ایچ او ہیں جو ڈی ایس پی ہیں اور سینئر افسر جو ہے وہ کالر جھاڑتے ہوئے یہاں سے نکلے اور کوئی وفاق میں رپورٹ کر رہا ہے کوئی کسی اور صوبے میں کر رہا ہے. تو اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے ایون دو اس میں تھوڑا ٹائم لگا ہے جس کے لیے ہم معذرت خواہیں مگر اب ایک جوڈیشل انکوائری اس وقت جاری ہے. جسٹس شبر رضا صاحب کا اپروول پنجاب کابینہ نے دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 100% میرٹ کے مطابق رسپانسبلٹیز فکس ہوں. جس کی جو سزا بنتی ہے جس کی جو جزا بنتی ہے وہ انشاءاللہ ملے گی اور آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. تیسری اہم بات یہ تھی کہ 23, 24, 25 مئی کو جتنی بھی انہوں نے بدماشی کی اس بدماشی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے بے گناہ بے شمار ہمارے شہریوں کے اوپر انہوں نے پرچے دیے. میرے علم میں یا میرے نوٹس میں جتنے بھی پرچوں کا بتایا گیا آج وہ پولیس نے انویسٹیگیشن کے بعد قانونی طریقہ اپناتے ہوئے لاہور کی بالخصوص تمام ایف آئی آرز وڈرا ہو چکی ہیں. ہمارے کسی کارکن کے اوپر اس وقت ایف آئی آر نہیں ہے. اور دوبارہ میں اسی پریس کانفرنس کے ذریعے 25 مئی کے حوالے سے پورے پنجاب میں اگر کسی ہمارے شہری پہ بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے وہ میرے سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہم اگر پرچہ ناجائز ہوا تو اس کو ختم کرانے کی ہم شیورٹی دیتے ہیں. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب اسمبلی کی 2 ایف آئی آرز اور نیب کیس نیب کا جو حملہ کیس ہے اس میں 60 سے زیادہ ایم این اے اور ایم پی اے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ورکرز ہیں جن کے خلاف ایف آئی آرز ہیں میرے پاس موجود ہیں. میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں
जो हमने इनको कॉल ऑफ नोटिस भेजे हैं, जो एक लीगल प्रोसीजर है, वो ये 2 या 3 कॉल ऑफ नोटिस के बाद अगर वो नहीं आएंगे तो अगला तरीका ये है कि फिर चालान जमा होगा और मुअज़्ज़ज़ अदालतें इनका फेट डिसाइड करेंगी कि इनके साथ क्या होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर भी साथ साथ जारी है। आज से 2-3 दिन पहले एक बहुत ज़्यादा र्यूमर फैली कि जी गालिबन इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आप सब मुअज़्ज़ज़ बहन भाइयों के ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं कि लॉन्ग मार्च कब हो, तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि लॉन्ग मार्च 2 सूरत हाल में हो। पहली सूरत हाल ये है कि अगर खुद इमरान खान साहब हुक्म देंगे तो पूरी कौम इस वक्त तैयार बैठी है लॉन्ग मार्च के लिए, उनकी दी हुई तारीख के मुताबिक लॉन्ग मार्च होगा। और एक दूसरी वजह भी हो सकती है लॉन्ग मार्च की, अगर किसी ने कानून से हट के इमरान खान के साथ ऐसा कदम उठाने की कोशिश की तो मैं आपसे वादा करता हूँ और हमारी पार्टी ने डिसाइड कर लिया है, हम अगले लम्हे लॉन्ग मार्च के मोड में चले जाएंगे और फिर ये पंजाब की सड़कें होंगी, वफाक की सड़कें होंगी और आवाम होगी और इतना जमे गफीर होगा कि मुझे खुद नहीं समझ आती कि हम इतनी लोगों को मैनेज कैसे करेंगे पंजाब और इस्लामाबाद की सड़कों पे। मैं आज ही मुझे बहुत खुशी है, हम मुअज़्ज़ज़ अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान साहब को, जो एक खामखा में ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम इमरान खान से जान कैसे छुड़ाएं। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अब आप इमरान खान से जान नहीं छुड़ा सकते। इनको नाहल कर दें, इनको गिरफ्तार कर लें, ये सब कोशिशें आपकी रह जाएंगी और मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे और इस मुल्क की हुक्मरानी करके इन हालात को, जो इस वक्त इतने गंभीर हालात हैं कि बयान करने से बाहर है, तो इंशाल्लाह ये हालात बेहतर करेंगे। मुझे 1-2 वाक़यात के ऊपर थोड़ा है, रिग्रेट भी है। आपके मुहर्रम के दिनों में सियालकोट में कुछ वाक़यात हुए जो कि काफ़ी अरसे से सियालकोट बहुत पुरअमन था। कल फिर एक वहाँ पे जाकिर थे जिनका मर्डर कर दिया गया, तो हम इस वाक़े को बहुत सीरियसली लेते हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर दोबारा किसी भी किस्म की, वो मजहबी है, वो सियासी है, ऐसी जुनूनियत आए। मैं इंशाल्लाह परसों जा रहा हूँ, मैं सियालकोट में मीटिंग करूँगा, दोनों जो हमारे फ़िरके हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो अमन है ये कायम रहे और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको इसके अंदर खेलने का मौका ना मिले। इसी तरह पिछले दिनों फैसलाबाद के 2 वाक़यात हुए, दोनों वाक़यात हमने ट्रेस किए। एक बच्ची थी खदीजा, उसके मुल्ज़मान इंतहाई बाअसर होने के बावजूद वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। और इसी तरह जो 7 न्यूज़ के जो मियाँ मुनव्वर उनके ब्यूरो चीफ हैं, उनके ऊपर जो हमें तहकीक से साबित हुआ, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिसने इतना बहिमाना उनके साथ वो किया। 6 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू है, वो ज़मानत पे है और इंशाल्लाह वो बिल्कुल भुगतेगा जो उसने किसी एक सहाफ़ी के साथ किया। हम बिल्कुल इसको नो गो एरिया समझते हैं, सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद हम किसी सूरत में भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। और आखिर में मैं लाहौर की पुलिस को कंग्रेचुलेट करता हूँ, उनको मुबारकबाद, शाबाश देता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट पंजाब में, जो बड़े अरसे के बाद इंग्लैंड की टीम आई, बदकिस्मती से हम आखिरी मैच हार गए, मगर ये हार और जीत खेल का हिस्सा है, मगर पंजाब पुलिस ने और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बेहतरीन रोल अदा किया। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे अच्छे काम सोशल मीडिया के ऊपर आपकी जात के हवाले से बहुत सी ट्वीट्स भी हैं, ट्रेंड भी चल रहे हैं कि आप पार्टी के साथ शायद लॉयल नहीं है, तो इस हवाले से क्लियर कर दीजिएगा कि इमरान खान के साथ आप लॉयल हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए। अच्छा, अगर मैं कह दूं लॉयल हूं तो आप मान जाएंगे? मुझे तो कोई शक नहीं है अपनी लॉयल्टी में। देखिए, मैंने आइन और कानून, मैंने भी आपको इतना कुछ बताया, मैंने ये तक कह दिया है कि आइंदा देखें ना, यही 2 वाक़यात हैं जो ट्रिगर हुए। हमने जब ये पिछला वाक़या हुआ तो उस दिन मुझे याद है कि सीनियर मिनिस्टर थे, लॉ में अपना राजा बशारत साहब थे, मैं था, तो हमने बड़ा क्लियर किया था कि आइंदा ऐसे वाक़यात अब चूंकि हुआ है तो हम इसका नोटिस ले रहे हैं। हम किसी भी शहरी को किसी भी अदारे की तरफ से उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो पंजाब पुलिस अगर इसमें मुलव्वस हुई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। डॉक्टर साहब, राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में परवेज इलाही साहब ने कहा है हमारे पास एक ऐसा केस आया है जिसमें ये सख्त तरीन सजा से नहीं बच पाएंगे। उस केस के बारे में तो कुछ थोड़ा बहुत आगाह कीजिएगा। देखें, एक तो मॉडल टाउन का केस है, ये बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक वो ट्रायल नहीं हो सका, जो भी रीजन हैं इसके लिए। और बिल्कुल सीएम साहब सही फरमा रहे हैं
मुझे तो खुद उसमें वो अब चूँकि प्रेजुडिस है, ये अदालत में मामला है, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, मगर जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आता है तो उसमें राणा साहब की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह एक ये बताइए कि भी आपने वाया प्रेस कॉन्फ्रेंस डीपीओ गुजरांवाला को वार्निंग दी, होना तो ये चाहिए था कि आप एक्शन लेते तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मैंने ये एक्शन लिया। मेरा सवाल पूरा सुनिए। देखिए जब पुलिस का रवैया, ना आप उससे ना महरम है, सारे दोस्त जानते हैं कि पुलिस थानों में ऐसे पैसे लेते जैसे आरती की दुकान पर लिए जाते हैं, और आपने कोई भी ऐसा केस अभी तक ऐसा नहीं किया कि जिस पे हम मिसाल बना सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि थाना फरोजवाला में एक हमायूं सईद साहब सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी वीडियो भी वायरल हुई कि उन्होंने एक बंदे के साथ, मिसिस के साथ नाजेबा हरकत की, फिर एक और क्लाइंट था उसकी सिस्टर के साथ नाजेबा हरकत की, और खुद उन्होंने बड़े क्लियर एविडेंस उनके पास, लेकिन इसके बावजूद इस हवाले से कोई आपने किसी को इबरत का निशान नहीं बनाया। देखिए ये क्या महरूमियत, इबरत का निशाना ये तो नहीं है, मैं किसी को सजाए मौत तो नहीं दे सकता। जब हम आए तो फैसलाबाद में आपको याद होगा एक पुलिस ऑफिसर था जिसने एक निहत्ती खातून पे ऐसे गन की, ये बहुत गलत काम था, वो ऑफिसर इस वक्त डिसमिस फ्रॉम सर्विस है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि फैसलाबाद में एक SHO ने एक सहाफ़ी पे तशद्दुद करवाया आज से 3 दिन पहले, वो अंडर डिसमिसल है। इसके अलावा जितने भी ऑफिसर्स थे वो अभी कोई भी उनमें से मौजूदा जगह पे नहीं है। ये जो एक पर्टिकुलर केस का वाक़या के बिल्कुल ठीक है, 12 करोड़ आवाम का ये सूबा है, इसमें वाक़यात होते हैं, आप इसकी निशानदेही करें, हम हमेशा इस पर एक्शन लेते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि CPO गुजरांवाला को, मैं एक प्रोसीजर है, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है, हमने उसका प्रोसीजर जो है उसको एक्टिवेट कर दिया है। IG साहब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इस ऑफिसर की इसमें कितनी नाहली है, क्या कनाइवेंस है, अगर साबित हुआ तो फिर मैं समझता हूँ सजा। जो मामला हुआ इससे पहले मुहर्रम में ये मामला हुआ, तो उसमें अभी तक किसी पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया कि आया जब मुहर्रम में वहाँ ये एक अहम इशू हुआ था। तो अगर आप लाहौर को देखें तो लाहौर में मस्जिद कारवा चलाया था FCC पे लाहौर गुलाम लोगों ने, और उसमें उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे, और छात्रा में भी इस तरह के वाक़या हुए, उसको मतलब कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन सियालकोट में ये वाक़या हुआ और एक डॉक्टर जो है वो शहीद हो गए, तो आप नहीं समझते कि इस तरह के मामला को रोकने के लिए पूरे पंजाब में मस्जिद हवादारी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए, और मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि मैं तो हम इसको लाइट नहीं ले रहे, मैं इसीलिए वहाँ पे खुद जा रहा हूँ। जितने दोनों तरफ से जो फ्री कैन हैं उनसे बैठेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने जज्बात को ठंडा रखें। ये भले कोई जाकिर साहब हों या कोई इमाम मस्जिद हों, खतीब हों, कोई भी जमात हो, हमारे लिए सब बराबर है, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई टॉलरेंस की जाएगी। अच्छा ये बताएं कर्नल साहब, आप पहले भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, FIA इस मामला में इन्वॉल्व है, जो इस मामला की निशानदेही आप कर रहे हैं। FIA फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, आपके सब्जेक्ट में FIA आती ही नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में FIA आती ही नहीं। आपने लास्ट टाइम भी कहा कि जी पहले हमारे DPO को FIA के अहलकार जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। डायरेक्टर FIA बड़ा क्लियर है कि हमारे पास एक अथॉरिटी मौजूद है। आप किस तरह एक फेडरल गवर्नमेंट के इदारे को जो कि डायरेक्टली खुद ऑपरेट कर रहा है हर सूबे में, आप उसे किस तरह ये बाउंड कर सकते हैं कि PTI वर्कर पे हाथ डालने से पहले वो आपको इतला दे या अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर को इतला दे? एक तो इसका जवाब, और दूसरा परसों पंजाब असेंबली ने, इस्तेहकाम कमेटी ने एक फेडरल मिनिस्टर के खिलाफ बाकायदा तौर पे कार्रवाई की मंजूरी दी। इस्तेहकाम कमेटी ने उस फेडरल मिनिस्टर को बुलाया जिसने वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान एक उंगली का इशारा किया था, इस वक्त फेडरल मिनिस्टर है, और इस्तेहकाम कमेटी ने कहा है कि अगर ये पेश नहीं होता तो हम इसकी गिरफ्तारी डालेंगे। आप बीइंग अ होम मिनिस्टर इस्तेहकाम कमेटी की सिफारिश पर क्या फेडरल मिनिस्टर की गिरफ्तारी डालने के लिए कोई इक़दाम देंगे? बिल्कुल, जब उधर से हुक्म आएगा। देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में चंद लोग हैं जिनको इम्यूनिटी हासिल है, वो गिरफ्तार नहीं हो सकते, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं या आपके गवर्नर्स हैं। इसके अलावा तो कोई भी शख्स जो कानून की वायलेशन करे, इधर माजी में हुआ है, आपके वज़ीर भी गिरफ्तार हुए हैं, हमारे अपने वज़ीर होते हुए, सूबाई वज़ीर होते हुए गिरफ्तार हुए, नैब ने गिरफ्तार किया। जहाँ तक दूसरी बात आपने की FIA वाली, देखें FIA बिल्कुल हमारे अंडर नहीं है, मगर जब वो हमारी पुलिस की इमदाद लेते हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं पुलिस की इमदाद लेके तो वो आगे ऑपरेट करते हैं, यही हमारा कहना है। और बाय द वे ये जो दूसरा वाक़या ये FIA का वाक़या नहीं है, इस मुल्क में और भी अदारे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए
मैं उन अदारों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, आप कानून का तरीका अपनाएं और हमें एम्बेरस मत करें, पुलिस को मिस यूज़ ना करें। आपने पुलिस को यूज़ करना है, दें FIR, आप बंदे गिरफ्तार करें, उनको कानून के सामने खड़ा करें। तो इसलिए जहाँ कहीं पे भी पंजाब पुलिस यूज़ होगी, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम इसको एब्यूज़ नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनके खबरें आ रही हैं, तो वो आएंगे तो आप उनको एस्कॉर्ट फराहम करें पंजाब। जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है, हम देखते हैं वो जमानत करा के आ रहे हैं या जमानत के बगैर आ रहे हैं। जो भी उनकी जो ऑथराइज, जो उनकी ब्लू बुक के मुताबिक अगर कोई सिक्योरिटी होगी, तो अगर जैसे इमरान खान साहब को सिक्योरिटी मिल रही है इस्लामाबाद में, तो हम भी जो साबका वज़ीर आज़म होंगे उनको देंगे। मगर पहले तो ये देखेंगे कि वो एक कन्विक्टेड के तौर पे आ रहे हैं या जमानत करवा के आ रहे हैं, या उनका स्टेटस क्या होगा। उनका स्टेटस क्लियर होने के बाद हम फैसला लेंगे। हमला हुआ था, नैब पर हमले में मुस्तफिक लोगों के काफी ज्यादा लोगों पर FIR है, मरियम भी शामिल है। तो मरियम को पासपोर्ट भी मिल गया, उसको बाहर जाने देंगे या उससे पहले जो FIR दर्ज है उस पर गिरफ्तारी कर सकते? हमने उनको कॉल अप नोटिस दिया हुआ है। अब देखते हैं वो ज़मानत करवा के आती हैं या कैसे शामिल तफ्तीश होती हैं। तो ये तो जो बाहर भेजने का है, ये तो आपको पता है डोमेन जो है इमिग्रेशन हमारी डोमेन नहीं है, ये तो वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास अथॉरिटी हुई उसको हम यूज़ करेंगे फॉर द राइट पर्पस। डॉक्टर साहब, आपने ट्वीट किया था कि अगर इमरान खान के बनी गाला में छापा मारा जाता है तो जाती उमरा जो है वो भी लाहौर में है, तो क्या आप इरादा रखती हैं कि जाती उमरा में भी कोई छापा मारा जाएगा या वहाँ से भी कुछ गिरफ्तारी की जाएगी? नहीं, अल्लाह ना करे ये कोई जाती उमरा, ये इसको कोई मस्जिद का रुतबा तो नहीं ना हासिल। अगर बनी गाला पे हम किया जा सकता है रेड, तो फिर पाकिस्तान की किसी भी प्राइवेट जगह पे रेड हो सकता है। अगर हमें कहीं शक होगा कि कोई मफरूर मुल्जमान ने कहीं पनाह ली हुई है, तो वो तो हम अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट लेके हम चेक कर सकते हैं, इसमें कोई अमल मान। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, हम उसमें ऐड करने लगे हैं। अभी आपस में डिस्कस करके कितने दिन चाहिए, क्योंकि ये पूरे पंजाब की हो रही है, सिर्फ लाहौर की नहीं है। हमने नोटिस दिए हैं कि लोग आएँ, अपने बयानात रिकॉर्ड कराएं। बहरहाल उनको यही अर्ज़ किया है कि आप इसको एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अब ऑलरेडी 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको हम वाइंड अप करना चाहते हैं। थैंक यू। बच्चे को के बारे में